Ahead of new mining season set to commence from October, the representatives of 26 village panchayats from mining belts have pleaded before the Supreme Court to take up Goa iron ore mining resumption matter on urgent basis. The crucial mining matter is likely to come up for the hearing in the Supreme Court tomorrow, 6th of July, before Justice Shah and Justice D.Y. Chandrachud. The last hearing in the case was held on 17 March and the matter was set to be listed on 7th of April. But the matter did not come up for hearing due to the spike in COVID cases. The representatives of village panchayats from affected villages due to mining stoppage claim that Goa mining industry has been consistently misrepresented in various government departments and before the judiciary. The representatives earlier filed a representation to the Supreme Court demanding a solution to the grave situation witnessed by the people of Goa since past 40 months. अभी ऐसा परिस्थिति हुआ कि कंपनी ही बंद है और माइनिंग चालू नहीं होता, तो हमारे गांव में ऐसा परिस्थिति, जो हायर स्कूल में जाता था वो लोगों ने छोड़ा है और उनका बाप माँ एज हुआ, इसलिए उनको काम को 18 साल को काम ढूंढने को जाता है। अभी उनका पढ़ने का उम्र है, लेकिन उनको काम करने को जाना पड़ता है। जो हमारा बिजनेस माइनिंग का था, जो हमारा विलेज है वो पूरा माइनिंग डिपेंडेंट है। बहुत सा लोग, कम से कम मेरा कॉलम पंचायत में ही मैं 500 के ऊपर एम्प्लॉयज़ था जो माइंस के ऊपर डिपेंड था, डायरेक्ट ही डिपेंड था। और कम से कम 370 ट्रक व्हीकल था, जो पूरा जो ट्रक चलेगा तो उसका रोजी रोटी चलेगा, उसका चूल्हा चलेगा। ये हिसाब से पूरा ये विलेज हमारा, ये छोटा सा विलेज था लेकिन पूरा माइन के ऊपर डिपेंड था। आज हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, गोवा गवर्नमेंट से, कि बाबा कम से कम वो तो बिज़नेस हमारा चालू रखो जिस वजह से कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसका रोजी रोटी चले, उसका रोटी तो कम से कम उसका चले। जिस वजह से माइनिंग चालू रहेगा तो हमारा ये लोकल पंचायत से वो सर्वाइव हो सकता। सच बोलना तो हमारे सावरडा का जो पूरा पंचायत एरिया है ना, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम लोग है माइनिंग पे डिपेंड है। मीन्स हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम, नहीं तो मेन बिजनेस बोला तो सब लोग डिपेंड ऑन माइनिंग। किसका ट्रक चल रहा था, कोई रिपेयरिंग कर रहा था, किसका टायर पंचर शॉप था, ऑल रिलेटेड बिजनेस जो भी चलता था वो माइनिंग का रिलेटेड बिजनेस था। 2012 में माइनिंग बंद हुआ, आज पूरा देश बोल रहा है लॉकडाउन है, लेकिन हम तो लॉकडाउन 2012 से चल गए। 2012 में हमारा पूरा माइनिंग एरिया का जितना लोग है, जस्ट लाइक आज का लॉकडाउन पूरा इंडिया देखा, नहीं तो पूरा वर्ल्ड देखा, लेकिन हम 12 से देख रहे हैं। Maharashtra started their lockdown long time back. Karnataka started their lockdown long time back. We did not start. Why we did not start? Because government of Goa was depending on tourism as the income. So obviously, had they gone on insisting on RT-PCR test for bringing the tourist inside, that means half the tourists would not have come, thinking that अरे I have to do RT-PCR test, अब उधर जाके क्या करेगा and all that stuff. So those tourists have not come, or those tourists, what they brought some money, but moment this pandemic came, they have stopped coming. So the government was reluctant to pass an order for carrying out complete RT-PCR test before entering Goa, because of losing business in tourism sector. That means hotels would have lost, casinos would have lost, taxi fellows would have lost, airlines would have lost, and so many other allied people would have lost. Obviously, government would have lost on GST and fuel cost and other things. They have lost money. Plus any turnover of small businesses, shopkeepers, everyone would have lost. Now, having not done that, why did they not do it? Because there was no other strong income like mining. Had mining been there, today government would have said, okay, chalo, at least mining income is there. Now during this pandemic also, we have operated our barges. Obviously the business was not a great extent or something like that. We have just made about 33% or 40% business, which normally we should have done. So had mining been started, I don't think government would not have been constrained to take that step. हमारा गोवा में ये एक तो खेती ज़्यादा नहीं, लेकिन कोकोनट ट्री जो गोवा का एक में वो इनकम था, मैक्सिमम साइक्लोन से जो कोकोनट ट्री या ये जो हमारा बनाना ट्री वो पूरा ज़मींदोस्त हो गया, बहुत नुकसान हो गया। यानी जो छोटा मोटा खेती करने वाला है वो भी ख़त्म हो गया उसमें। साइक्लोन की वजह से बहुत सा खेती पूरा ज़मींदोस्त हो गया, हवा की वजह से
कम से कम बहुत नुकसान हो गया। हर खेत वाला आज नुकसान है बोल के हमारे पास पंचायत के पास आ रहा है, हमारे को कुछ तो हेल्प करो, सरकार को बोलो। लेकिन हम भी हेल्पलेस है, हमारे पास जो भी होता है हम उनको कंट्रोल करने को देख रहा है। तो अभी सेकेंड वेव आ गई लॉकडाउन अपनी इसकी कोविड की, तो अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग मर रहे। गोवा में 50-50, 70-70, 75 लोग मर रहे, तो सब लोग अभी डरे हुए हैं, ये हो रहा है क्या। कोई किसी ने ऐसी ज़िंदगी नहीं देखी थी कि लोग मर रहे, अभी बीमार होते, 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहते, घर आते, यही हम लोगों को मालूम है। लेकिन जो आदमी जा रहा है और 10, 15, 20, 25, 70 लोग मर रहे, सब डरे। गोवा गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी कम बढ़ रही है, अभी क्यों कब बढ़ रही है ये गोवा गवर्नमेंट को नहीं पता कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अगर आज के टाइम अगर माइनिंग चालू होती तो माइनिंग टोटली माइनिंग कंपनीज, माइनिंग ओनर, वी ट्रक ओनर या और वेंडर जो माइनिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट ओनर ऐसे सब इसकी जिम्मेदारी लेते थे। आज खाना पीना जो हॉस्पिटल का जिसका जो प्रोविजन जो क्या फंड चाहिए उसे सब माइनिंग लेते। यह माइनिंग की ताकत है गोवा की। टूरिज्म गवर्नमेंट ने चालू किया बीच में, क्यों चालू किया? गवर्नमेंट चलाना है, फंड आना है, तो उसको मजबूर होके मजबूरी आई, गवर्नमेंट पर मजबूरी आ गई कि वो कुछ तो अभी फाइनेंस चाहिए गवर्नमेंट चलाने, तो इसलिए तो टूरिज्म चालू किया। लेकिन उसका गलत हो गया कि कोविड फिर से बढ़ गया। किससे बढ़ गया? टूरिज्म से बढ़ गया। किससे बढ़ गया हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन अगर माइनिंग चोरी होती थी तो आज टोटली टूरिज्म बंद होता, क्योंकि फाइनेंस हमारे पास है। टूरिज्म की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर लॉकडाउन कर सकते थे गोवा गवर्नमेंट कि बाहर के आदमी के लिए अंदर आना मना करते थे, और अंदर के अगर किसी के बाहर गए तो उसको चेकिंग होता था, ये सब करते थे। लेकिन फाइनेंस की वजह से गोवा गवर्नमेंट कम पड़ गई बिकॉज ऑफ माइनिंग। अगर आज अपनी माइनिंग चालू होती तो ये सिचुएशन गोवा में नहीं आते। तो दोबारा एनजीओस जो कोर्ट में गए सेकेंड टाइम 2017 या 18 में जो माइनिंग बंद हो गई, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली ये एनजीओस है जो कोर्ट में गए हुए हैं। आज गोवा की जो हालत हुई है वो जो क्लाउड ऑर्वेस है वो जिम्मेदारी है। उसने जो सेकेंड टाइम जो पिटीशन फाइल किया, आज उसकी वजह से ये गोवा की हालत हुई है। अभी हमारे जो गोवा के लोग हैं जो वीडियो निकाल रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम अभी वीडियो निकाल के एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम कर सकते हैं, आरोप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन फैक्ट है वो है माइनिंग, और माइनिंग जिसने कोर्ट में जाके बंद की है वो जिम्मेदार है आज का सिचुएशन में। They further explain that immediate resumption of mining is the only tangible solution to the devastating effects of Goa mining stoppage, disturbing over 3 lakh livelihood, followed by the hard-hitting impacts due to COVID pandemic on tourism sector, which further added to the sufferings of Goans. जी, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा हार्टली हम्बली हमारा ये जो लोकल विलेज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा रोजी रोटी या ज़्यादा नहीं, हमको ज़्यादा इकोनॉमी नहीं मांगता, लेकिन जो रोजी रोटी रोज़ का डेली वेजेस तो कम से कम वो माइनिंग जो डिपेंड है उनको कम से कम वो चालू करके और उसको मूवमेंट दे के चलना, पहले जैसा नहीं लेकिन कम से कम इसमें वो माइनिंग चालू करने का, वो माइनिंग को उसको चालना देने का, कुछ भी करके उसको वन डोर करके सोल्यूशन निकालना। हमारा थोड़ा लोग ऐसा था जो माइनिंग बंद पड़ा 17 में, तब हम लगा बाबा एग्रीकल्चर कुछ तो करेंगे, क्योंकि इतना एरिया हमारे पास था जो माइनिंग के लिए थोड़ा कुछ खराब हुआ था। पहले हम लोग माइनिंग पे डिपेंड है तो एग्रीकल्चर में उतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तब 17 से हम लोग इन्वेस्ट किया, बाबा एग्रीकल्चर तो कुछ करके हमारा दिन का जो गुजारा है करेंगे। लेकिन आज जो पैंडेमिक के सिचुएशन हुआ, परसों जो साइक्लोन हुआ, उसके वजह से वो भी चला गया। तो आज का डेट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मीन्स लोगों के पास जो माइनिंग के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, वो भी जो भी कमाया था इतना साल में, ये तो 4 साल में हम लोग रिपेयरी करके खर्चा कर रहे हैं। उसके वजह उसमें कोई एक आस थी बाबा एग्रीकल्चर में कुछ करेंगे,
एग्रीकल्चर में थोड़ा लोगों ने इन्वेस्ट किया, जो भी घर में पैसा था थोड़ा लोगों ने लोन लिया, थोड़ा लोगों ने अपना गोल्ड ये वो रख के लोन लिया। और आज का पोजीशन में इतना खराब परिस्थिति निकला है, एग्रीकल्चर भी साइक्लोन से चला गया। तो हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट, इन लोगों को कुछ तो हेल्प करना है एग्रीकल्चर के लिए। सेकेंड रिक्वेस्ट है हमारा, माइनिंग कैसा भी करो लेकिन जल्दी चालू करो, क्यों हम हर साल सुन रहे हैं बाबा 2-3 महीने में डिसीजन आएगा, प्रॉपर माइनिंग चालू हो जाएगा। हम लोग इधर बैठ के एक आस में जी रहे बाबा हो जाएगा, लेकिन उसके बजाय हमारे जेब से पैसा जा रहा है। लोगों जो कुछ है घर में उसको लोन लेके लोग रिपेयर कर रहे हैं, वापस माइनिंग नहीं हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, होता है तो डम पॉलिसी निकालो, ई ऑक्शन फास्ट करो, कुछ भी करो जिसमें हमको रेगुलर काम साल का मीन्स एक्चुअली गोवा में साल का 6 महीना ही काम चलता है, 6 महीना बारिश के लिए बंद रहता है। एटलीस्ट 6 मंथ का जॉब है, वो तो हमको रेगुलर देने का एक एश्योर्ड काम देने का एक तो जिम्मेदारी ले लो। तभी अभी साइक्लोन आया फिर से, और ये जो साइक्लोन है वो वेरी डेंजर। इसने तो टोटली तबाही कर दी, लोगों को इतना परेशान झेलना पड़ा कि बहुत से झाड़ जो है वो नीचे गिरे, किसके गाड़ी पर गिरे, किसके घर पर गिरे, किसके आदमी पर गिरे, कोई आदमी मर गए। हाँ, जो बाकी का सिस्टम है, जो अपने सोचो लाइट खंबे गिरे, वो ये तो हम खड़े कर सकते हैं, लेकिन आदमी को कौन खड़े करेगा जो आदमी मर गए। हाँ, जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर घर पे झाड़ गिर गए, उसके घर का टोटली कोलैप्स हो गया, वो बेचारा क्या करेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, किसको देखेगी? कोविड को देखेगी, ये साइक्लोन को देखेगी, और आपको खुद को देखेगी। हर आदमी जब गवर्नमेंट डेवलपमेंट का एक प्लान बनाते हैं, गवर्नमेंट का डेवलपमेंट प्लानिंग होता है कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, जब कोई भी एनजीओ जाके उसमें टांग अड़कता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा। अभी कौन देखेगा? कोई एनजीओ देखेगा? उसका किधर गए एनजीओ? अभी कोविड आ गए, लोग मर रहे, किधर गए एनजीओ? साइक्लोन आया, तबाही हो गई, किधर गए एनजीओ? हाँ, छिप गए, किधर छिप गए एनजीओ? हाँ, अभी क्या उसका काम नहीं है क्या? मर गए एनजीओ? हाँ, पर कहना पड़ रहा है, ऐसा मजबूर हो गए लोग। अभी सभी लोग क्या होता है, कोई भी आके ये गवर्नमेंट, ये एमएलए, ये मिनिस्टर, हाँ, ये गलती निकालने की टाइम नहीं है। अभी सबको, गोवा के सबको लोगों को अपने ऊपर से भरोसा रखना है, दूसरे को भरोसा देना है, और अपने जो सिचुएशन है वो पहले के जैसी लानी है। And today we are also in a desperate situation because of pandemic. What is going to affect that I'll tell you. Today all the barge owners have sacrificed the oxygen for the people, because all the yards who were doing the repairs of the barges, that is stopped. That oxygen is diverted for medical oxygen. Obviously we support that. But then barges, how will they be repaired for the monsoons, after monsoons? So next 3 months oxygen has to be made available for the barges also, because if you have to repair the barges, the old parts have to be cut, and the new steel has been fabricated. So for that oxygen gas is required. So we might be delayed for repair, because we have already come now to almost end of May, but as we talk, and our repair season starts from first week of June. So we are expecting that if this happens, then we should be getting ready for the repair. So we have got about 74 barges in Goa, out of which 50-60 barges have to be repaired. Plus exporters have got 35 barges. There's hardly 15 barges are repaired. So they'll have to repair their barges. And if you are going to get a quota of 20 million tons for export of iron ore, then we require at least 100 barges in operation. And all these barges have to be repaired in next 3 months. So it is imperative that oxygen is made not only to the people of Goa for survival, but also for the barge industry, which requires oxygen otherwise also. We are always on oxygen. Our oxygen is withdrawn, and now at least we require for repair of the... The mining stalemate in Goa has completed its 3rd year due to the policy paralysis, with no concrete solution in sight for the stalemate, and there is an utter need to immediately resume mining in the state to mete out the disparity prevailed due to policy, misinterpretation and legal flaws.
According to reports submitted by State's Tourism Ministry in December 2020, Goan tourism has suffered loss to the tune of 7,000 crore rupees, with recorded job losses with range of 35%. With the second wave of pandemic, the entire structure of state's economy and livelihood of the people has fallen apart. Considering the situation of grave concern in the state, immediate resumption of Goa mining will help in bringing back the state on the track.